छोड़ तुमको हम गिफ्ट कर रहे हैं पेन, बहुत स्टैंडर्ड पेन है तुम्हारे लिए। अरे स्टैंडर्ड है तो आपके लिए है ना ना, हमको तो यही चाहिए, तो मंगवाए 10 ठो करवा दें। मंगवाना है, उनको बोले हैं पैसे देंगे, 10 ठेला दीजिए। Recording in progress. Hello? तुम्हारी फ्रेंड बोलिए तो क्या, फ्रेंड बोलिए तो हेलो बोलो। फेसबुक चैनल आया फेसबुक Welcome to Dr. P.C. Verma Economics class. Today, we are going to discuss interdependence of agriculture and industry, a case study in context of Indian economy. We all know that agriculture and industry are closely interlinked. In fact, they are the inseparable sides of an economy. If agriculture is the backbone, industry is the energy of the economy. Agriculture and industry are complementary to each other.
One cannot develop without the other. We shall now discuss this interdependence under different heads. For example, contribution of agriculture to industry, and under this we will examine supply of raw material, supply of food, supply of uh, food for workers, uh, capital formation in rural area, and good market for industrial goods, both consumer and capital goods. Agriculture is the source of healthy and strong labor for industry. All these are to be discussed under contribution of agriculture to industry. On the other hand, contribution to industry to agriculture, it has to be regarded that industrial development is an essential condition for the growth and development of agriculture. The contribution of industry to agriculture becomes evident from the following facts. Number one, industry supplies various agricultural inputs such as chemical fertilizer, pesticides, pump sets, tractors, and other implements, and thus help in raising agricultural productivity. Secondly, the infrastructure required for agriculture in form of irrigation project, road, transportation, vehicles, etc., would have been possible only with the help of industrial sector. Thirdly, there is large amount of surplus labor in our agriculture due to rapid growth of population. So our agriculture is facing the problem of subdivision and fragmentation of land holdings. Industry opens a new and additional sources of employment to absorb all this surplus labor. When agriculture productivity improves as a result of industrialization, farmers' income increases. Thus, they spend a lot of money on goods other than food. All these goods are supplied by industrial sector. In short, agriculture industry are two inseparable sides of the economy. The real development of an economy would only be possible when these two are developed. These are the background in which we will discuss. So the topic is interdependence of agriculture industry in context of Indian economy. Agriculture and industry. Agriculture and industry are closely interlinked, are closely interlinked. In fact, they are the inseparable. In fact, they are the inseparable sides of inseparable sides inseparable sides of an economy. If agriculture is the backbone, if
agriculture is the, if agriculture is the backbone, industry is the energy. Industry is the energy. Industry is the energy of the economy. Of the economy. Agriculture industry agriculture and industry are complementary. Agriculture and industry are complementary. Complementary to each other. To each other. One cannot develop one cannot develop without the other. Without the other. Interdependence of agriculture and agriculture industry. Interdependence of agriculture industry may be discussed, under two heads. Under two heads. लिख ली Maybe discussion again. चेंज करे पे हाँ? contribution of agriculture to industry. Number 1.
Agriculture supply raw materials to the industries, to the industries such as cotton, jute, tea, sugarcane, oil seeds, etc. Agriculture supplies raw material to the industry. It means this is agriculture and this is industry. This is cotton, this is jute, this is tea, sugarcane, oil seeds. ये हो गया आपको एग्रीकल्चर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये सारा चीज जाएगा, कहाँ जाएगा? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ऑयल सीड्स इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, और अब देखो, ये जो हम लोग का है ऑयल सीड्स है, यहाँ से चला, यहाँ से सब आ जाएगा इंडस्ट्री में, है ना? तो
Agriculture supplies raw material to industries such as cotton, jute, tea, sugar cane and oils etc. तो ये इंडस्ट्री है और ये क्या है? एग्रीकल्चर। चित्र बनाने में ध्यान क्या रखना है कि ये बीच वाला जो है पाइप खोल के रखेंगे, ठीक है? यहाँ से इधर चला जाएगा। और यहाँ से जाएगा, यहाँ से इनकम जाएगा इसको, है ना? ये इनकम हो गया, इधर से जा रहा है और रेड वाला जा रहा है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो ये हो गया इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडस्ट्री इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, है ना? So this shows contribution of agriculture to industries in India. ये आंसर लिखोगे तो तुम्हारा बात वही लिख रही हो, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? This shows clarity of your mind. This shows your teacher has taught in a very good way that you understand that there are two circles. From one circle to another circle, there is a movement automatically. Resources will be moved and return journey money will come. Both will flourish. है ना? Both sectors will be benefited by this relationship, by this relationship between agriculture and industry in India. क्लियर है? नंबर 2 है agriculture supply food for the worker working in the dependent. Agriculture supplies, सर्कल गोल बनाओगे, हमारा तो थोड़ा टेढ़ा हो गया एकदम, गोल गोल दोनों। एग्रीकल्चर का बड़ा बनाओगे, एग्रीकल्चर बड़ा क्षेत्र है और उससे थोड़ा छोटे इंडस्ट्री रखोगे। एग्रीकल्चर सप्लाईज फूड फॉर द वर्कर, फॉर द workers working in different industry, in different industries.
industry. Third, agriculture is the source of capital formation. Agriculture is the source of capital formation. Capital formation for industries. For industries. Saving of the farmers. Savings of the farmers are invested in industry. Are invested in industry. अब देखो इसका इक्वेशन क्या होगा, सेविंग फार्मर का है तो सेविंग ऑफ फार्मर लिखे हैं ना, यहीं पर ब्रैकेट में लिख देंगे एस एफ, ठीक है, बाकी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सेविंग द फार्मर को क्या फॉर्मूला दे दिए, एस एफ, सेविंग द फार्मर आर इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्री। तो देखो यहाँ सेविंग is a function of interest rate. SF हो गया फार्मर सेविंग, फार्मर सेविंग, और आर क्या हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेड टू फार्मर्स, ठीक है। और नियम क्या है, इकोनॉमी जो होता है उसका नियम क्या होता है इकोनॉमी का, कि जो सेविंग होगा वही देश में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सेविंग रखा रहेगा बैंक में, बैंक से लोन लेके फैक्ट्री खोल देगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, है ना। और इससे क्या ना सपोर्ट पर नजर रखो, इससे क्या असर होगा, देखो कैपिटल बढ़ जाएगा, ये हो गया इंक्रीज इन डेल्टा के माने हो इंक्रीज इन कैपिटल, के से कैपिटल दिखाया जाता है। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और कैपिटल डेल्टा के हो जाएगा, डेल्टा के बाई के, यही हो गया कैपिटल फॉर्मेशन, जो ऊपर तुम्हारे किताब में लिखे हुए कैपिटल फॉर्मेशन की के में वृद्धि हो गया, ओरिजिनल के इतना है और के बढ़ गया, है ना, के कैपिटल हो गया, के क्या हो गया, के इज कैपिटल। ई देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको देखो ना, इसको बोलेंगे डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। हम लोग दे रहे हैं चेंज के लिए, चेंज मतलब कि इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी, तो सेविंग में हम लोग इंक्रीज मानेंगे, इंक्रीज के लिए इंक्रीज इन सेविंग, इंक्रीज इन सेविंग। तो सेविंग जो होता है वही इन्वेस्टमेंट होता है ना। अब ऐसे समझ लो कि फार्मर्स सेविंग
in banks will be used for loan providing to industries, to industry owner. Farmer saving in banks will be used for loan providing to industry owners, है ना? तो ये तुम्हारा किताब ही कह रहा है कि एग्रीकल्चर इज द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब उस कैसे होगा? द सेविंग ऑफ द फार्मर एएसएफ आर इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्री भाया, आया माने उसके रास्ते भाया बैंक लोन, बैंक डिपॉजिट, लोन्स टू फार्मर्स। कैसे रुपया उसके पास चला जाएगा? वो तो इंडस्ट्री सेविंग इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्री भाया मैंने रास्ता भाया क्या है? बैंक डिपॉजिट होगा। बैंक डिपॉजिट्स, अब बैंक डिपॉजिट कन्वर्ट किस में हो जाएगा? लोन्स टू फार्मर। यही कह रहा है एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन फॉर इंडस्ट्रीज, तो उसको पैसा मिल जाएगा। सेविंग ऑफ द फार्मर आर इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज भाया बैंक डिपॉजिट एंड लोन टू द फार्मर। इसको पढ़ेंगे क्या? फार्मर सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इसको पढ़ेंगे, हमारे क्यों पढ़ने के कहेगा तो लिखोगी फार्मर सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। मुफ्त में कोई किसी को पैसा नहीं देता है ना? बिजनेस में फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 3 नंबर हो गया। चार, फोर्थ क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चरल भी बोला जाता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर provides a good market, a good market for industrial goods, for industrial goods। बोथ कंज्यूमर एंड कैपिटल, बोथ दो होता है। वो कंज्यूमर गुड, आइसक्रीम खाई तो कंज्यूमर गुड हो गया, और कैपिटल गुड्स हो गया कि बिजली उत्पादन कर दिया तो बिजली से फैक्ट्री चलेगा। कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब जैसे ट्रक हुआ तो वो कैपिटल गुड्स हो गया। कंज्यूमर गुड्स क्या हुआ? आइसक्रीम हुआ, पिज्जा हुआ, ब्रेड हुआ, ये सब कैपिटल गुड्स क्या हुआ? कैपिटल गुड्स हो गया। जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, है ना? ट्रैक्टर तो फैक्ट्री ना बनाएगा, तो वो कैपिटल गुड्स हो गया। दूसरे मशीन है। अब कंज्यूमर गुड्स हो तुम खा जाते हो, जैसे कि पोटैटो,
उससे तुम चिप्स बना के खाती हो, तो कंज्यूमर गुड्स हो गया। और पांचवा है एग्रीकल्चर इज सोर्स ऑफ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग लेबर फॉर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर, अब जो भी डायग्राम है ना, तो जो भी हमारे यहाँ लड़का पढ़ता है ना 10 सेट प्रैक्टिस करता है, उसे करके हमको दिखाओगी। और टाइमिंग नोट करो, देखो आधा हो जाएगा, टाइम घट जाता है। दूसरा मुंह देखते रह जाएगा तो सड़क से खींच दोगे फिगर। और दूसरा नाप जोक करेगा कि कितना बाएं जाएगा कितना आएगा। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग लेबर, हेल्दी एंड healthy and strong labor for the industry, for the industry, for the industries. In short, agriculture induces industry, induces industry to produce more, to produce more and supply the raw material, and manpower, and manpower to it. और दूसरा है contribution of industry to agriculture. कंट्रीब्यूशन, देखो तो पहला वाला कंट्रीब्यूशन में वो 1 लिखे थे, क्या लिखे थे इसको, कुछ हेडिंग दिए थे कैसे, कुछ ऐसे ही था। 1 था रोमन नंबर, हैं? 1 था रोमन नंबर में, ये 2 है। अच्छा, रोमन नंबर में था इसे, हाँ, तो ये तो यहाँ लिखाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर, नंबर 1, नंबर 1, इंडस्ट्री सप्लाईज वेरियस इनपुट, एकदम आसान है। इंडस्ट्री रट्टा मारना शुरू करो, ये सब रटने का एकदम जमानत। इंडस्ट्री सप्लाईज industry supplied various agricultural input, various agricultural
inputs. Such as chemical, such as chemical fertilizer, chemical fertilizers, pesticides, pump sets, tractors, and other implements, and other implements. लिख लेता है tractors and other. लिख ली other tractors and other implements. Implements, and thus helps in raising agricultural productivity. Agricultural productivity. सबसे agricultural productivity productivity. Number 2, the infrastructure required for agriculture in form of irrigation projects, roads, transportation,
vehicles, etc. would not would not have been would not have been possible without the help of industrial sector. There is a large amount. There is a large amount there is a large amount of surplus labor. देख रही हो सरप्लस और कितना आ रहा है, कहीं रहेगा ना वहां डाल दोगी अगर यूज नहीं की हो क्लास में तो दूसरे आंसर में किसी में जहां भी मिलेगा सरप्लस लेबर का चित्र जो होती है ना, नॉन रिमेबल और रिमेबल सरप्लस लेबर नहीं, ये मैं देखो रिमेबल नॉन रिमेबल का इस डायग्राम को 10 सेट बनाओगी, बहुत जगह यूज होता है, बहुत को मालूम नहीं है, बहुत को पहली बार नजर देखे देख जाए एकदम समझाया हुआ कि पीक है, स्लैक है, फिर पीक है। स्लैक के समय तो बेरोजगार रहेगा, कितना भी पानी पटावेगा, एगो नहीं दूगो बाकी सब बैठा रहेगा। देर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस, देर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस लेबर in our agriculture, in our agriculture due to rapid growth of population. ये बात एकदम याद रखो, हर जगह बोलने का चाहिए, ड्यू टू rapid growth of population. So our agriculture is facing, our agriculture is facing, our agriculture is facing the problem of subdivision and fragmentation of holdings
industry opens additional sources. Employment. To absorb ये थर्ड हो गया, लिख ली ना। फोर्थ हो गया, when agricultural productivity improves, when agricultural productivity, agricultural productivity improves, as a result of, as a result of industrialization, industrialization, farmers' income increases. Farmers' income increases. Thus they spend. Thus they spent a lot of money. A lot of money on goods. On goods other than food. Other than food. All these goods are supplied by the
industrial sector. In short, agriculture and industry. Agriculture and industry are two inseparable inseparable sides of the economy. The real development of an economy would only be possible when these two are developed. अब एक चीज देखो, एक वर्ड है जो हमको देखो, यहाँ देखो, बात को समझो, घबराओ नहीं, बिना टेंशन लिए हुए देखो, ये लैंड है, ठीक है ना? इसका मालिक कौन है? ग्रैंडफादर। ये बात तो समझी है? अब क्या हुआ, इसको जो है 1 2 3 4 तक हो गया, दूध का 5 को लड़का हो गया। तो अब ये जो लैंड जो है, यही लैंड, ये जो साइज इतना किए हैं ना, डिवाइड हो तो जाएगा। इसको हम लोग बड़ा कर दे, बराबर कर दे, इसे है, ग्रैंडफादर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना ही बड़ा साइज रखें, ये प्लॉट है, ठीक है? ग्रैंडफादर को यहाँ से गए तो समझने के लिए बता रहे हैं, कोई ध्यान देने का परीक्षा में नहीं बनाना है, कहीं बोलना होगा तब बोलोगे। तो लैंड हो गया, तो लैंड किसके नाम से था? ग्रैंडफादर। अब ये सन हो गया, है ना? तो ई 1 प्लॉट था, ये क्या था? 1 प्लॉट। अब ये हो जाएगा तुमको 1 2 3 4 5, है ना? तो जो ऊपर वाला लैंड है वो रहेगा कि सब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा? है टुकड़ा टुकड़ा। तो इस लैंड हो गया, समझी? इसको बोला जाएगा सब डिवीजन। क्या बोला जाएगा? सब डिवीजन ऑफ लैंड। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है,
दादा का जो बच्चा से बड़ा पॉपुलेशन, और कोई आदमी हमसे कहता है कि आपके यहाँ आदमी को हमें 4 फ्लैट वहां का है बना दिए, यहाँ 4 का है बना, तो हम क्या जानते हैं कि तुमको 4 बच्चा होगा कि कोई पर 3 बच्चा, क्या तो मालूम नहीं ना है। तो अगला जनरेशन को कम से कम प्रोटेक्शन रहे, उसके बाद अगर पढ़ेगा तो देखेगा तो उसमें कोई बाहर चला जाएगा, कोई दूर चला जाएगा। तो लैंड है, आप पॉपुलेशन इंक्रीज, कौन इंक्रीज किया? पॉपुलेशन इंक्रीज लीड्स टू, देखो, लीड्स टू व्हाट? सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग, सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है? अब देखो, अब दो जनरेशन हुआ, अब देखो ये तीसरा जनरेशन, प्लॉट वही है, रामबली का प्लॉट वही है, लेकिन तोड़ तोड़ करके सब मकान बना दिया। अब ये देखो, यहाँ क्या हो गया कि मान लेते हैं कि सबको 2 बच्चा हुआ, तो ये सन है, ये क्या कहलाएगा? ग्रैंड सन। इससे grandson, ग्रैंड सन, इसको 2 बच्चा हुआ, तो 2 हो गया ग्रैंड सन, इसको भी 2 होगा, इसको भी हो गया ग्रैंड सन, ये हो गया ग्रैंड सन, इसको भी शादी में बच्चा हुआ, इसको भी हो जाएगा ग्रैंड सन, 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 इसको हो जाएगा ग्रैंड सन, इसको हो जाएगा ग्रैंड सन। मतलब इस परिवार में गलती से भी बेटी नहीं हो सकती है? है। मतलब इस परिवार में गलती से बेटी तो होगी भी तो उसको भी जमीन मिलेगा ना, अब तो नियम हो गया है। नहीं, अरे उससे भाई, पहले नहीं दिया जाता था। नहीं, ये क्या मतलब हुआ? अरे बेटी को शादी में, विवाह में रुपया पैसा दे के शादी करके भेज दी, घर गिरवी रख के शादी किया, गहना बेच के शादी किया, तो एक कंसेप्ट हो गया था कि बेटी को मैक्सिमम आप दे के उसको विदा कर दीजिए, अच्छे घर में भेजिए, और आप फिर इसके अगेंस्ट है कि फॉर है? है? आपका राय क्या है इस पर? अब तो बदल गया है ना, अब तो हो गया है कि डॉटर सन है, अगर तुमको मन करे तो उसमें तुम डॉटर भी कर सकते हो, उसे कंसेप्शन में समझने में दिक्कत हो जाएगी। डॉटर कोई लेती भी नहीं है, कितना लड़की है ना, वो भाई को मुंह देख के कह के नहीं छोड़ देंगे, और कुछ चंट होती है जो भाई को केस में जेल में बंद करवा के भी ले लेती है, कि कैसे तुम ले लो। 50-50 का होता है ना अब 50-50 तो है ही, नियम ही है, तो उसको छोड़ दो, अभी उसको सन या डॉटर नहीं, तो कुछ भी जो हो, जो डॉटर होगा तो उसको भी दें, तुम एगो डॉटर एगो लड़की बना देना, ठीक है? अब समझ लो तो बात, हमारा कहने का मतलब है कि एक प्लॉट टूट गया किस में? 4 प्लॉट, तो इसको कहेंगे सब डिवीजन, ठीक है? फिर अब 4 प्लॉट जो है वो टूट गया कितना में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में, तो इसको बोला जाएगा फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन ऑफ प्लॉट्स, प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब तुमको हम यहाँ सन किए, या सन के जगह पर तुम डॉटर कर दो, डॉटर, सन और डॉटर, फिर यहाँ सन है, मान लीजिए यहाँ भी हो गया डॉटर, डॉटर और सन जो भी कर, यहाँ भी सन है, आप डॉटर करते हो, मैंने कहने का मतलब, तो इसलिए अभी हम लोग सन इसलिए लेंगे कि ईश्वर अनडिस्प्यूटेड है, कि सन जो है वो हरामी होता है, वो लेगा ही, कुछ हमारे कुछ हो जाए, लाजूता हो जाए,
वो सामने देख रहे हो, वो पूरा बंटवारा कर लिया है, बगल में बगल। एग्जाम्पल देख लो, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, केस कर देगा, मुकदमा करेगा। डॉक्टर के साथ ये बात नहीं है। तो वो अभी मुद्दा नहीं, मुद्दा है कि वन प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू सब फोर डिवीजन फोर प्लॉट्स, यू विल कॉल इट सब डिवीजन। हम बता रहे हैं कि सब डिवीजन क्या है। सब डिवीजन हो गया, उसका अगला जनरेशन जब आएगा तो, और अगर 2 गो हुआ, 3 गो हुआ, तो उतना टुकड़ा और बढ़ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इस पर खेती करना मुश्किल हो जाएगा। इतना छोटा रहेगा कि ट्रैक्टर नहीं चल सकता। यहाँ ट्रैक्टर यूज हो रहा है, यहाँ ट्रैक्टर नहीं यूज हो रहा है। अब तुम देखो, इस लाइन में एगो लाइन है सब डिवीजन, उल्टो उधर देखो, इसमें कहीं पर लिखा हुआ पॉपुलेशन बढ़ने से सब डिवीजन होगा। पॉपुलेशन पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखो ना, देखिए। लास्ट हाँ। पॉइंट क्या कह रहा है? फॉलो So लाइन। our agriculture is facing the problem of subdivision and fragmentation of holdings हाँ, due to the rapid growth of population. पॉपुलेशन। उसके बाद Industry opens up new and additional sources of employees to absorb all the surplus labor. तो अब इंडस्ट्री क्या है, दे दो भैया, हमको सालों मिल के दे दो, तुम पैसे देते। वहां बिस्किट फैक्ट्री खोल देगा तो चलेगा, लेकिन खेती नहीं हो सकेगा। इतना छोटा हो गया है कि ट्रैक्टर नहीं चल सकता है ना। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर का? है लो हो लो हो जाएगा। जाएगा। तो वहां ये चीज तुमको जो दिए हुआ है, देखो ना, ये चीज को वो एक्सप्लेन नहीं किया है। स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। There is a large amount of surplus labor in agriculture due to rapid growth of population and population. So our agriculture is facing the problem of subdivision and fragmentation of holding. कि कैसे आ गया? Because they will claim their ownership on grandfather land. उसका तो बाप ही होगा, उसका फादर होगा। तो उससे क्या हो जाएगा? जो फादर का जमीन है, वो 4 बेटा हुआ, 4 टुकड़ा बढ़ जाएगा। तो पहले का फार्मिंग बेहतर होगा कि अब का फार्मिंग बेहतर होगा? है अब का मतलब पहले जो हाँ 1 प्लॉट था तब बेटर था। था। ट्रैक्टराइजेशन होता था, एग्रीकल्चर होता था, ग्रीन रेवोल्यूशन होता जा रहा था। तो क्यों किसान गरीब हो गया? बिकॉज ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स सब डिवीजन एंड एंड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। In every generation, there are more children added to the family, and they all will demand share in the land. So there will be very small land to each in each case, whether a girl or whether boy. गर्ल जो ना कहेगी, लेकिन उसका हस्बैंड कहेगा हम लेंगे दामाद, तो दामाद भी खड़ा हो जाएगा। और उधर कहते हैं कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल एंड बॉय, व्हाट आई वांट टू impress upon you the fraction, land subdivision, small pieces, and then again fragmentation. तो लैंड पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, लीड्स टू सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग। फिर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लॉट्स ऑफ लैंड। दिस विल लीड टू एग्रीकल्चर सेक्टर अनप्रोडक्टिव and not viable. Then they will leave their job and go to Bombay, Kolkata, and Punjab and become labor. Most of the agricultural labor nowadays has become laborer in Punjab and Haryana. They are not doing cultivation on their own land in Bihar because of this subdivision and fragmentation. In their share, very small size of land is which is not enough for their subsistence, for their well-being. Am I able to make you understand things or not? Yes. Yeah? Tell me. Okay. अब उधर चल अच्छा है, वो तो कोई इसी को ये ना जो अभी आप समझाए वही करते।
फोटो भी आ जाएगा और समझा दो कैसे हो लैंड डिवीजन और है तो और जोर से बोलना फोटो बढ़िया तो अनम्यूट है म्यूट है Yes, sir. स्टार्ट In the topic of contribution of industries to agriculture in interdependence of industry and agriculture on themselves, we saw in one of the points it was mentioned there is a large amount of surplus labor in our agriculture due to rapid growth of population. So our agriculture is facing the problem of subdivision and fragmentation of holdings. Industries, whereas opens up new and additional sources of employees to absorb all the surplus labor, unlike agriculture. Now, in the diagram which is shown on the board, we see the grandfather has one plot, which is a large plot. Then he has sons. It is if he has five sons, let's take an example. It is divided between the five sons. The whole plot is divided into five parts. After that, the third generation comes, the son's children, son, and then sons come. Let's take if they all the sons have two sons each. 1.2 we discuss one more point anyone in which When diagram agriculture, yes, sir. in which diagram is shown in point figure is shown in a starting point. So the that only I'm discussing in as mentioned in the point, large amount of surplus labor in our agriculture is due to the rapid growth of population, which is leading to the problem of division and fragmentation of plots of land as the generations come by. Okay.